Hi friends, welcome to my channel. In this video, I will be drawing Lord Ganesha before you. So this video is special on Ganesh Chaturthi. So in this video, I will be telling you first about Ganesh Chaturthi, why we celebrate it, what is the date and timings of it, and what is the mythological significance of it, and how we celebrate it, what we do during our celebrations, and also the awareness, the culture, and the social aspects about this Ganesh Chaturthi. So Ganesh Chaturthi is also called as Vinayak Chaturthi. Okay, it's a Hindu festival and it is celebrated all over the India in different states of India. Okay, so why we celebrate it? Because on this day Lord Ganesha was born, and so Lord Ganesha is also considered as the elephant headed god of wisdom, prosperity, and new beginnings. और ये फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड with great devotion, with enthusiasm, especially in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. So Ganesh Chaturthi कब आती है? It comes during the month of Bhadrapad. That is usually in the month of August and September. All right, and it the basically the date changes every year according to the calendar, Hindu calendar. So Lord Ganesha को हम गणेश चतुर्थी पे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, वाई? क्यों? क्योंकि लॉर्ड गणेशा इज कंसिडर्ड as the removal of all the obstacles in our life. He is the god of beginnings, and he is also known as a pattern of art and sciences. Sometimes the question comes in our mind that how the Ganesha was born, how the Lord Ganesha was created. So according to the Hindu mythology, Lord Ganesha was created by Parvati Ma. Okay, so how she created? She took a clay and make a beautiful, a baby, and then she brought that clay sculpture to the life, and it was Lord Ganesha only. Okay, so this was brought to life to guard her. This was the basic reason. It is also said that once goddess Parvati was bathing, and Bhagwan Shiv, Lord Shiva, wanted to enter the that place. So Lord Ganesha was put outside that place to just guard that nobody should enter inside because she was bathing. तो उनको बाहर खड़ा कर दिया गया, तो लॉर्ड शिवा आ गए. बट यूजली ही कम्स एंड एंटर हिज होम, लाइक जैसे हम अपने घर में जाते हैं वैसे ही लॉर्ड शिवा आ रहे थे. ठीक है, गणेश जी बाहर खड़े थे एंड उनको नहीं पता था कि हु इज़ लॉर्ड शिवा. He blocked his way and doesn't let him enter in the house, and that there from there the story starts how the Ganeshji was created as elephant headed. So उसके बाद क्या हुआ? They started fighting, and there was a great kind small battle between them. सो दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि लॉर्ड शिवा ने ही जस्ट beheaded his head, and the Ganesha was lying on the floor. ठीक है, सो व्हेन पार्वती गॉट टू नो अबाउट दिस कि his son has been beheaded, so she came fast. She came there quickly, and she was in a great anger, and she was like कि ऐसे कैसे हो गया. ठीक है, तो उन्होंने लॉर्ड शिवा को कहा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, इसको मैंने ही यहाँ पे खड़ा किया था. ही इज़ माई सन, ही वॉज माई सन. ठीक है, तो पार्वती नाराज़ हो जाती हैं. टू अपीज़ पार्वती, तो शिवा को होता है कि अब मैं कहाँ से इसको ठीक करूँ, हेड को दोबारा से लगाऊँ या कुछ और करूँ. सो what he did, he got some idea. He sent his attendants कि आप जाओ कहीं से भी जो आपको पहले कोई सुंदर सा जो भी लिविंग बीइंग मिलेगा, आप उसका, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी सुंदर सा पहला
जो मिलेगा वो आप उसका हेड काट के हम यहाँ पे ले आना, ठीक है। तो वो चले जाते हैं, अटेंडेंट्स जब चले जाते हैं तो वो सारे रास्ते घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो उनको जब देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा एलिफेंट नज़र आता है, ठीक है। आप उसको ग्रे भी कह सकते हो, उसको वाइट भी कह सकते हो आप, इट्स जस्ट मैथोलॉजिकल स्टोरी, तो आप उसको कैसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो जब उन्हें दिखता है तो वो उसका सर काट के ले आते हैं लॉर्ड शिवा के पास। सो लॉर्ड शिवा के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि ये उसकी बॉडी पे, लॉर्ड गणेशा की बॉडी पे लगा देते हैं अपनी पावर्स के साथ, सेलेस्टियल पावर्स जो होती हैं लॉर्ड शिवा की, उसके साथ वो फिट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्वती उस टाइम पे बहुत खुश हो जाती हैं कि हिज सन इज़ नाउ बैक टू लाइफ, ठीक है। और भगवान शिव उसको बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिससे कि लॉर्ड गणेशा को हमेशा ही पूजा जाए। हर हर पूजा से पहले लॉर्ड गणेशा की ही पूजा होनी चाहिए, ऐसा ब्लेसिंग्स मिल जाता है। सो आप देखें, हम हमेशा कोई भी अपने घर में पूजा स्टार्ट करते हैं, पहले स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है। वो उस दैट इज़ अ सिंबल ऑफ भगवान गणेश जी का, ठीक है। तो भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। जब भी हम कोई बाकी की पूजा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। नाउ आई विल टेल यू हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड। सो पहले यूजली लोग अब क्या करते हैं, दे ब्रिंग द clay idol of Lord Ganesha. They bring it from a place where it is made, and they bring it to home, and they install at home, or maybe not just in home. It is placed in different places, like in some big pandals. एंड सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र और जो स्टेट्स थे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ही करते हैं, बिकॉज पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर समटाइम्स, तो मोस्टली इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, ठीक है। तो पंडाल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गणेश जी की रखी जाती हैं, घर पे छोटी रखी जाती हैं, बाहर बड़ी रखी जाती है, ठीक है। तो उनको पूरा डेकोरेशन किया जाता है फ्लावर्स के साथ। इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे हमारा क्ले भी इको फ्रेंडली मटेरियल ही है, ठीक है, लेकिन उसके पास जो डेकोरेशंस होती हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली, ठीक है। ट्रेडिशनली उन जो हाइट होती है लॉर्ड गणेशा के आइडल की, सो इट्स लाइक अ फ्यू इंचेस टू सेवरल फीट, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर साइज़ ही होना चाहिए, यू कैन कोई भी साइज़ आप रख सकते हो, ठीक है। तो लोग उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, कोई पेंटेड लाते हैं, कोई क्ले का कोई क्ले का लाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स भी यूजुअली होता तो क्ले या पत्थर का ही है, जो मूर्ति होती है वो पत्थर या क्ले की होती है। बट द वे द पीपल सेलिब्रेट इट इज़ जस्ट ऑसम, ठीक है। तो जब वो स्थापित किया जाता है घर पे, ठीक है, तो लॉर्ड गणेशा की बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। जो ये फेस्टिवल्स होता है प्राण प्रतिष्ठा रिचुअल से, ठीक है। तो जिससे कि जब वो हम मूर्ति रखते हैं घर पे तो उसकी पूरी पूजा करते हैं, ठीक है। तो हर रोज़ पूजा करनी होती है, ठीक है। और उसमें हम स्वीट्स बनाते हैं, स्पेशली मोदक्स, जो बहुत ही फेमस रहते हैं इस त्यौहार के दौरान। जो और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये त्यौहार 10 दिन तक चलता है, तो इसमें जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है, वो मोदक ही होता है यूजुअली, ठीक है। एंड विच इज़ लॉर्ड गणेशा's फेवरेट, आई मस्ट से। और फ्रूट्स ऑल्सो वी कैन यूज़, फ्लावर्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें, जो भी हर किसी का जो भाव है उस अकॉर्डिंग वो रखता है, ठीक है। सो गणेश जी की आरती गाई जाती है, ठीक है। और भी जो हम भजन टाइप्स होते हैं वो भी गाए जाते हैं गणेश जी के लिए। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द very charm, with very excitement, and people are just very happy to do this occasion celebration.
सो 10 दिन तक घर पे रखने के बाद गणपति बप्पा को, तो उसके बाद फाइनल प्रोसेशन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लास्ट डे पे, ठीक है। उस दिन फिर व्हाट दे जस्ट दे चैंट गणपति बप्पा मोरया एज अ आइडल, उनकी मूर्ति को लेके जाते हैं किसी वाटर बॉडी में, आपके घर के पास या आपकी सिटी के पास जो भी नदी है, जो भी, अगर समुंदर के पास है तो समुंदर है, अगर कोई नदी है और कोई लेक है, तो वहाँ पे लॉर्ड गणेशा को विसर्जन किया जाता है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि नाउ इट सिम्बलाइजेज दैट गणेशा इज रिटर्न टू माउंट कैलाश, ठीक है, गणेश जी माउंट कैलाश पर वापस आ गए हैं टू कंटिन्यू द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि 10 डेज तक त्यौहार चलता है और लास्ट डे विसर्जन के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है। सो ये लास्ट डे को हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी, ओके। सो ये जो त्यौहार है जो स्टार्ट होता है तब चतुर्थी पे स्टार्ट होता है, और जब लास्ट डे होता है वो अनंत चतुर्दशी कहते हैं उसको, ठीक है। सो इस दिन हम विसर्जन करते हैं गणेश जी का, जैसे कि मैंने बताया कि किसी वाटर बॉडी में विसर्जन होता है। सो दिस फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट्स a deep cultural and spiritual significance of our Indian tradition. एक और बात बताऊं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के बारे में हमें कैसे पता लगा। ये हमें पता लगा जब ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से पुणे में मनाया जाता था ड्यूरिंग द एरा ऑफ किंग शिवाजी। सो ये बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ, कौन से सेंचुरी में इट वाज स्टार्टेड बाय द पेशवा इन द 18th सेंचुरी। सो ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज़ पहले लोग अपने घर में ही बहुत ही अच्छे से पूजा और अर्चना करते थे, सेलिब्रेट करते थे बहुत अच्छे से, जैसे कि स्वीट्स वगैरह सब रिचुअल्स वगैरह पूरे करते थे। बट जब ये पब्लिकली सेलिब्रेट कब होना स्टार्ट हुआ, जब पुणे में जब किंग शिवाजी मराठा का एरा था 18th सेंचुरी में, तब डिवोटीज़ ने बहुत ही पब्लिकली सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद एक ट्रेडिशन बन गया, एवरीवेयर इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अ हाई लेवल। सो हेयर आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गणेश चतुर्थी। तो अब थोड़ा सा आर्ट के तरफ भी हम आते हैं, ठीक है। सो इन दिस पेंटिंग आई हैव मेड द गणेशा रिक्लाइनिंग एंड सिटिंग, okay, and giving blessings to everyone, each one of us. And here I have used acrylic colors, and I have used the bright colors on handmade paper. The texture I'm using, the sheet I'm using is handmade paper, which is very soft and smooth. I am outlining with the pen just to enhance the painting. So you can, it's just a dedication to the Ganesh Chaturthi I have made this painting. So you can also make the painting for Lord Ganesha, just to, ये भी एक पूजा ही है मेरे लिए, तो ये पूजा हुई, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बनाई है पेंटिंग, ठीक है। Now let's have a small music with this. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। All right, thank you everyone. Now don't forget to subscribe my channel and watch my videos. Any comments you want to share, anything you want to know more, just put in the chat box and let me know. I'll definitely answer to your questions. Thank you so much.